हमारे बीच में राहुल जी हैं। आज 62वां दिवस है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। कल अंतिम दिवस है। 5:30 बजे को राहुल जी चैत्य भूमि में होंगे। डॉक्टर अंबेडकर स्मारक में अंतिम समारोह होगा। पर इस बीच कल रात से कई सनसनीखेज समाचार छपे हैं, जिस पर मीडिया में भी टिप्पणी हुई है। आज दोपहर को कांग्रेस अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, पर ये इतने सनसनीखेज हैं कि राहुल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना आज शाम को हम सोचे ये जरूरी था। तो मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा वो इस बारे में कुछ बोले, उसके बाद में आप सवाल कर सकते हैं। राहुल जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने ये हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल फाइनेंस का सिस्टम है उसको साफ करने की बात की थी, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो नरेंद्र मोदी जी ने डेवलप किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। और कुछ ही दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई देश को दिखी है। बेसिकली जो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। मैं फिर से कह देता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का एक्सटॉर्शन रैकेट है। कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लेने का तरीका है, और शायद सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है। इसके सब आंकड़े आपके सामने हैं। पूरी कंपनी की लिस्ट अभी आई नहीं है। इसमें शेल कंपनीज हैं, इसमें सीबीआई ईडी से प्रेशर डाल के पैसा लिया जा रहा है, डेट्स हैं, कंपनी पर केस लगता है, उसी के थोड़े दिन बाद बीजेपी को पैसा मिलता है, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट का एक कट बीजेपी को डायरेक्ट मिलता है। तो ये प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट है और दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का, करप्शन का उदाहरण है। अंग्रेजी में बोलूं या? Some years back, Prime Minister came up with a concept which he claimed was designed to clean Indian political finance. And at the heart of the concept was the idea of the electoral bond. The ability for corporates to give electoral bonds anonymously. Now it turns out that this is a way of extorting money from India's largest corporates. It is a way of stealing money from the biggest contracts in the country. It is a way of intimidating corporates and making them, forcing them to give money to the BJP. So it is the world's biggest corruption scam. It is the world's biggest extortion racket, and it is run by the Prime Minister of India. I don't really expect the Indian media to pick up this in a large way, because I know, from past experience, the type of things you focus on. But this is huge theft taking place right in front of everybody's eyes, and it has been orchestrated by the Indian Prime Minister. Now, if you have any questions, please. Yes, Archana. I'll come to you. Opposition, whether it is the Congress party or the PMC,
So now what will be the further strategy? How Look, the question is not whether it is 10%, 20%, 50% more. The question is that none of the opposition parties have access to contracts at the national level. None of the opposition parties are giving highway contracts, are giving defense contracts to these people. Okay? So, none of the opposition parties are controlling the CBI. None of the opposition parties are putting Pegasus on people's phones. None of the opposition parties are controlling the income tax department. None of the opposition parties are controlling the extortion directorate. These are all controlled directly by the BJP and by the Prime Minister of India. And what we are seeing is criminal extortion from corporate India. Every single corporate knows this. They are scared, they are pressured, but this is what is going on. The question here is not opposition. The question here is that months after a contract is given, the corporate is suddenly giving electoral bonds to the BJP. The question here is, immediately after CBI is filing a case, ED is filing a case, the corporate is giving money to the BJP. This is the issue here, right? And it is blatant, and it is run by the. कहाँ से आया? मैं आपको बता रहा हूँ पैसा कहाँ से आया. बट सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसका हिस्सा लेकर बीजेपी ने सरकार को दे रहा है. तो नींद तो यही है, फाउंडेशन तो यही है. हाँ जी, राहुल जी, आप एक्सटॉर्शन को लेकर, तो इस मुद्दे को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? जो भ्रष्टाचार हुआ है आपका मानना है, तो इसको इस मुद्दे नहीं, मेरा मानना मतलब आपने पढ़ा नहीं इसके बारे में क्या? आपने अभी बोला तो आपने लिस्ट दी थी कंपनी की, आप मीडिया में है ना? नहीं नहीं, जाएंगे क्या, हम रेज करेंगे, मगर आपका भी काम बनता है ना. कहाँ कर रहे हो आप? तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हुआ ही नहीं. तो मेरा कहना है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का रोल है, आपका रोल है. ये पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इसको बीजेपी ने कैप्चर कर रखा है, और पूरे सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस इसी काम में लगे हुए हैं. ये एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है. इससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती. और दुनिया में सबसे बड़े लेवल पे हो रही है, सबसे मतलब मैक्सिमम जैसे किया जा सकता है वैसे किया जा रहा है हिंदुस्तान में. आप फिर से वही सवाल पूछ रहे हैं. मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सरकार नहीं चलाती है. हाँ, उस पर डिस्कशन हो सकता है, इंडिया गठबंधन में डिस्कशन हो सकता है, मगर पॉइंट ये है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग किया जा रहा है, कंपनीज को एक्सटॉर्ट किया जा रहा है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए जा रहे हैं, और फिर एकदम बाद कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है. शेल कंपनीज उसमें भरी हुई हैं, और ये पूरा का पूरा जो ढांचा है प्रधानमंत्री ने क्रिएट किया है. इनका ब्रेन चाइल्ड है. इन्होंने कहा है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स हिंदुस्तान की राजनीति को साफ कर देगा. हो गया. Abhinav, please. No, we are doing one question. Thank you. You've asked your question, please. राहुल जी, आपकी यात्रा दूसरी बार महाराष्ट्र में आई. पहली बार जब आए थे तो कांग्रेस पार्टी की तस्वीर कुछ अलग थी, लेकिन अब जब आए हैं तो पूर्व सीएम से लेकर एक पूर्व सांसद तक पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में चले गए, शिवसेना में चले गए. क्या नहीं, देखिए, पार्टी का साथ छोड़ के नहीं गए हैं. पैसा देकर, सीबीआई को यूज कर ईडी को यूज कर उन पर दबाव डाल के इनको पार्टियों को तोड़ा गया है.
कांग्रेस को नहीं तोड़ा गया है, कांग्रेस का कोई नहीं गया है, कांग्रेस एक बिल्कुल साफ खड़ी हुई है वहां पे। हाँ ठीक है, वो मिलिंद देवरा वो ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारी पार्टी इंटैक्ट है, जरूर अशोक चौहान गए, मिलिंद देवरा गए, और हमारी पार्टी इंटैक्ट है। शिवसेना को ये एनसीपी को पैसे से तोड़ा गया है। कैसे तोड़ा गया है आज मैं आपको बता रहा हूं। हाँ जी, न्यूज तक से रेडी। और चुनाव में यहां पे कांग्रेस पार्टी और हमारा जो गठबंधन है रिकॉर्ड मत से जीतने वाला है। हाँ जी, मेरा अमेठी से जुड़ा हुआ सवाल है। हमने पूरी यात्रा कवर की है और जब हम अमेठी पहुंचे तो जनता के बीच बहुत ज्यादा डिमांड ये थी कि राहुल गांधी जी जो है वो चुनाव लड़े अमेठी से। तो क्या ऐसा होता हुआ दिखाई देगा? ये तो हमारी सीईसी है, खारगे जी है, वो ऑर्डर देंगे, मैं करूंगा जो भी उनकी राय है। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, जो ऑर्डर मिलेगा करूंगा। वी कैन। हाँ, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन। हाँ, ये सारे इलेक्ट्रल बॉन्ड में जितनी कंपनी लिस्टेड है उसमें से आपको जिसने फंडिंग किया है उनके भी नाम सामने आएंगे। तो आगे चलकर ऐसा होगा क्या कि आपको जिसने फंडिंग किया है उनको भी सीबीआई और ईडी से फिर से टारगेट किया जाएगा? हो सकता है। सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में है। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे, इसीलिए ये जो हो रहा है ये हो पा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू।